Solve the game. इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्यूशन देखिए, पहली वाली रो छोटी है दूसरी वाली रो से, छोटी है। पहली रो सारे जीरो जीरो, इसमें बड़े बड़े हैं जीरो से, या जीरो है तो पहली रो छोटी, पहली रो डोमिनेट हो जाएगी पहले नंबर पे। सिंस ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज लेस देन और इक्वल टू द corresponding element of second row, so we dominate first row. Four two zero two one one, 431 322, 437 minus 512, 434 minus 122, 433 minus 222, second, third, fourth, fifth, sixth, first, second, fourth, sixth. अब देखिए, सेकंड रो फोर्थ थर्ड रो से छोटी है, 4 4 के बराबर है, 2 3 से छोटा है, 0 1 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, पहले डोमिनेट हो जाएगी। यहाँ पे ये हो गई। सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इज लेस देन और equal to the corresponding element of third row, so dominate second row. Third, fourth, fifth, sixth, first, second, third, fourth, fifth, sixth. Four, three, one, three, two, two. 4 3 7 minus 5 1 2. 4 3 4 minus 1 2 2.
4, 3, 3 minus 2, 2. 6. Each element of first column is greater than or equal to corresponding element of second column. So we dominate first column, second, third, fourth, fifth, sixth, third, fourth, fifth, sixth, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 7 minus 5, 1, 2, 3, 4 minus 1, 2, 2, 3, 3 minus 2, 2, 2. Now, since each element of second column is greater than or equal to the corresponding element of sixth column. So we dominate second column, third, fourth, fifth, sixth, third, fourth, fifth, sixth. 1, 3, 2, 2. 7 minus 5, 1, 2. 4 minus 1, 2, 2. 3 minus 2, 2, 2. Since each element of sixth column is greater than or equal to the corresponding element of fifth column. So we dominate sixth column, third, fourth, fifth, third, fourth, fifth, sixth. 1, 3, 2, 7 minus 5, 1, 4 minus 1, 2, 3 minus 2, 2. Since each element of sixth row is less than or equal to the corresponding element of fifth row. So we
dominate sixth row, third, fourth, fifth, third, fourth, fifth, 1, 3, 2, 7, minus 5, 1, 4, minus 1, 2. 4 minus 1, 2, 1, 3 upon. Since each element of fifth column is greater than or equal to the corresponding element of average of third and fourth column. So we dominate fifth column. Third, fourth, fifth. Third, fourth. इसमें कई बार लिखना पड़ेगा तो हमें हैबिट में आ जाएगी कि भी हाँ इस तरीके से हमें लिखना होगा। इसमें 2 बार थर्ड प्रॉपर्टी लग रही है डोमिनेंस की, फर्स्ट सेकंड तो लग रही है। Since each element of fifth row is less than or equal to corresponding element of third and fourth row of average of third and fourth row. So we dominate fifth row. 1, 3, 7, minus 5. Third, fourth, third, fourth. A, B. Now let mixed strategy for player A is x1, x2 and for player B is y1, y2 and VB value of the game. तो x1 बराबर a22 माइनस a21 बटे a11 प्लस a22
A12 plus A21 minus 5 minus 7 upon 1 minus 5 7 plus 3 minus 12 upon 14 6 upon 7 and x2 बराबर 1 minus x1 1 minus 6 upon 7 बराबर 1 upon 7 and y1 बराबर A22 minus A12 upon A11 plus A22 minus A12 plus A21 बराबर minus 5 minus 3 upon minus के 14 minus 8 upon minus 14 4 upon 7 y2 बराबर 1 minus y1 बराबर 3 upon 7 and v बराबर A11 A22 A12 A21 upon A11 plus A22 A12 plus A21 5 7 21 बटे माइनस के 14 माइनस 26 बटे माइनस 14 13 बटे 7 10 मिक्स्ड स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इच। देखिए हमारे पास बची है केवल थर्ड और फोर्थ रो, दो ही तो बची है। तो पहली रो नहीं है 0, दूसरी नहीं है 0, तीसरी पे कितना आया मान 6/7, चौथी पे कितना आया 1/7, पांचवी भी नहीं है और छठी भी नहीं है। जो रो डोमिनेट हो गई है ना उनके लिए स्ट्रेटजी क्या लेंगे 0, और जो बची हैं केवल उन्हीं के लिए लिखना है। इसी प्रकार मिक्स स्ट्रेटजी फिर बी के लिए कितनी होगी 0 0, बी की तरफ भी थर्ड और फोर्थ ही बच रही है। तो ये होगा थर्ड के लिए आया 4/7 और फोर्थ के लिए आया है 3/7, 0 और 0 एंड वैल्यू ऑफ द गेम 13/7। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर हम इसे विद स्टेटमेंट जैसे हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं ऐसे लिख के आते हैं तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, और अगर हम इसे डायरेक्ट करके आए डायरेक्ट भी कर देते हैं तो फिर मान लो 10 नंबर क्वेश्चन है तो 7 नंबर या 6 नंबर भी जाएंगे। देखो इसमें जो हमने थर्ड रूल लगाया है इसे एक बार देखो, यहां से स्टार्ट किया थर्ड रूल लगाना हमने।
यहां से किया, बल्कि यहां से किया लगाना थर्ड रो। हम देख रहे हैं रो में भी कोई सी रो ऐसी नहीं है जो बिल्कुल छोटी हो, कॉलम में भी कोई सा कॉलम ऐसा नहीं है जो बिल्कुल छोटा हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, पहले इन दोनों का एवरेज लेते हैं। 7 और 4 पॉइंट में आया 5.5 माइनस के 3 1.5। इससे ज़्यादा छोटा नहीं है ये एवरेज, नहीं है छोटा इससे। फिर हमने इन दोनों का एवरेज लिया, इन दोनों का 7 और 1 का 4 हो गया, 5 और 3 का 1 हो गया, 2 और 1 का 1 हो गया। तो या था 4 माइनस 1 और 1, 4 माइनस 1 और 1, जो छोटा है किससे, 4 माइनस 1 2 से। लेकिन हमें तो चाहिए क्या, रो में छोटे को गायब करते हैं तो 2 रो गायब हो जाएंगी। ऐसा तो होने का नहीं है, क्योंकि हमें तो 1 रो गायब करनी है ना, 2x2 बनाना है हमें इसको। तो इस रो वाले को नहीं लगाएंगे, फिर हम कॉलम पे आ जाइए। हमने इन दोनों का एवरेज लिया 2.5 माइनस के 2 और 1.5। ये भैया इससे ये बड़ी नहीं है उन दोनों से, क्योंकि यहाँ पे आएगा 1.5, यहाँ पे आएगा 2.5, ये 1 है तो 2.5 बड़ा हो गया। फिर हमने इन दोनों का एवरेज लिया, 3 और 1 का कितना हो गया 2, 7 और माइनस 5 का 1 और 4 और माइनस 1 का 3/2। अब ये वाला कॉलम जो इस एवरेज से बड़ा है नहीं बड़ा, तो इसलिए हमने इसको गायब कर दिया। हमने 4 बार में करके क्यों दिखाया, हम 1 बार में कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें तो पहले पता थोड़ी होगी तुम्हें कि कौन सा अप्लाई करना है हमें। तो हमने इसलिए इन दोनों का एवरेज लेते हैं, तो इस बार ये वाला कॉलम बड़ा आता है तो बड़े कॉलम को हटा देंगे इसमें से। हमने बड़े कॉलम को हटा दिया, अब रो भी छोटी नहीं मिल रही हमें इसमें। तो अगर हम इन दोनों का एवरेज निकालते हैं, 7 और 1 का एवरेज 4, 5 और -3 -5 और 3 का एवरेज -1। अब ये एवरेज जो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इसे हम छोटा मान के कर सकते हैं, हटा सकते हैं इसको। तो ये वाली रो जो है इन दोनों के एवरेज से छोटी है, बराबर है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसलिए छोटी वाली रो हटा दी हमने, तो 2/2 में चेंज हो गया। पहली दूसरी प्रॉपर्टी तो सभी लगा लेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी लगाने के लिए हमें फिर सोचना पड़ेगा कि किस किस का एवरेज लेना है। तो रफली हमें रफ पे लिखना पड़ेगा पहले एवरेज, उसके बाद डोमिनेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 2 प्लेयर A and B, 2 player A and B without showing each other, without showing each other. Put a coin of 1. Put a coin of 1 rupee on a table. On a table. With head or tail up. With head or tail up. If the coin shows same side, if coin shows same side, the player A take both the coin. The player A take both the coin. Otherwise, we get them. Otherwise, we get them. Construct the matrix of game. Construct the matrix of the game. Of the game and solve it. Is it a fair game? Solution. First, second, head, tail, player A, player B. ये हो रहा है हमारा गेम। 1 रुपए का सिक्का है, उसे दोनों रखते हैं, अगर दोनों तरफ का हेड आ जाए या दोनों का टेल आ जाए तो ए जीतता है, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बी जीतता है। ए जीतेगा तो किसके कॉइन जीत रहा है, बी के कॉइन ही तो जीतेगा, दोनों को ही रख लेगा। तो एक तो उसका खुद का था ही था,
क्या कितने रुपए जीता वो? 1 रुपए जीता। तो यहाँ एक आ जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा। अब मान लो एक हेडर एक टेल आता है, तो फिर बी जीतेगा, बी रख लेगा दोनों कॉइनों को, तो फिर ये अपने कॉइन हार जाएगा, क्योंकि टेबल हमने बताया था ना ए को जीतने के लिए बनानी है, तो ये अपना हार जाएगा। तो यहाँ पे -1 और -1 आ गया, ये हमारे पास टेबल बन जाएगी, क्योंकि 1 रुपए का सिक्का है। जब दोनों का ही हेड आया, ठीक है, तो ए ने दोनों सिक्के रख लिए, तो एक तो उसका खुद का ही था, उसे थोड़ी जीता उसने, वो तो उसका खुद का ही था, जीता क्या वो? 1 रुपया तो जीता, तो एक आ गया यहाँ पर। अगर दोनों टेल आए तब भी 1 रुपया जीता वो। अगर एक का हेड आया, एक का टेल आया, तो फिर बी ने रख लिए दोनों रुपए, तो फिर अपना 1 रुपया हार गया, तो फिर -1 आया, फिर -1 आया। इस समय सेल पॉइंट चेक कर लेंगे, आएगा ही नहीं सेल पॉइंट, सिंस पे ऑफ मैट्रिक्स हैज नो सैडल पॉइंट। तो so let x1, x2 be mixed Raji for player A and y1, y2 be mixed Raji for player and v be the value of the game। so x1 बराबर a22 माइनस a21 अपॉन a11 प्लस a22 a12 प्लस a21 बराबर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 -1 बराबर 2/4 इक्वल टू 1/2। x2 बराबर 1 - x1 1 + 1 अपॉन y2 बराबर 1 - y1 एंड v बराबर 1 × 1 so mixed Raji for player A is equal to 1/2, 1/2 1/2, 1/2 and the value of the game v बराबर 0। तो so game is a fair game। Consider modified form of matching based coin game problem। The matching player is paid which paid 8 रुपए if 2
coin, turn both head and rupee 1. If the coin turn both tail, the non-matching player is paid rupee 3 when there are one hand and one tail. One head and one tail. Give the choice of being. The matching on non-matching player. Matching. Which one would your choice and what would be your strategy? ये कह रहे हैं कि द मैचिंग प्लेयर इज पेड रुपए 8 इफ टू टर्न कॉइन टर्न बोथ हेड and rupee 1 if the coin turn both tail. The non-matching player is paid rupee 3 when there is one head and one tail. Give the choice of being matching non-player on non-matching player. Which one would you choose? What would be your strategy? ये हुए हमारे पास में 8 रुपए और 3 रुपए, 8 रुपए और 1 रुपए, 3 रुपए और 3 रुपए, ये है हमारे पास में। जब दोनों हेड आते हैं तो 8 रुपए पे होते हैं, ठीक है, और दोनों टेल आते हैं तो 1 रुपया पे होता है, और अगर एक हेड और एक टेल आता है तो 3 रुपए पे होते हैं। देन द मैचिंग प्लेयर इज पेड रुपए 8 और ये 3 पे वो लगा लीजिए माइनस माइनस दोनों, ठीक है ना। नॉन मैचिंग प्लेयर दे रहा है क्योंकि, ठीक, नॉन मैचिंग प्लेयर के लिए बात कर रहे हैं। गिव द चॉइस ऑफ बीइंग द मैच ऑन नॉन मैचिंग प्लेयर। नॉन मैचिंग प्लेयर की बात हो रही है ना, तो नॉन मैचिंग प्लेयर का मतलब बी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए बी के लिए बनाइए टेबल हमने यहाँ पर। तो बी के लिए बनाने का मतलब क्या है, जब ए ने 8 रुपए दिए तो बी को प्राप्त हुए 8 रुपए, 1 रुपया दिया ए ने तो बी को प्राप्त हुआ 1 रुपया, गेन हुआ उसे। और जब 3 रुपए किसने दिए, ये नॉन मैचिंग प्लेयर यानी बी ने दिए 3 रुपए, तो उसे घाटा हुआ 3 रुपए का नुकसान, इसलिए माइनस माइनस लगा दिया उनपे। उसके बाद सारा काम इसी तरीके से करना जैसे हमने कल किया है, ठीक है ना। Now let me strategy for player A is x1 x2. One plus 3, 8 plus 1 minus 3 minus 3 बराबर 4 अपॉन 1। सही, 1 minus 4 upon 15, 11 upon 15,
1 plus 3 upon 15, 4 upon 15, 11 upon 15, 8 minus 9 upon 15, minus 1 upon 15, 4 upon 15, comma 11 upon 15, 4 upon 15, comma 11 upon 15, minus 1 upon 15. तो b जो है फॉर b इज 1 अपॉन 15. अगर इसे b के लिए लिखेंगे तो 1/15 आएगी, a के लिए लिखेंगे तो -1/15 आएगी. इसी प्रकार तीसरा वाला पार्ट